अस्सलाम वालेकुम नज़र चौहान ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨੰਬਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਲਓ ਫੋਨ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾ ਲਓ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੌਸਮ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਖੁਨਕੀ ਹੈ 23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਅਗਸਤ ਦੀ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 23 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਕੱਲ ਵੀ ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਲਾਂ ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੌਸਮ ਹੈ ਕਿਆ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 2000 ਵੀਲੌਗ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਐਸੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਫੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ मोहतरम ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਸੌਖਾ ਆ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ 4 ਕਿੱਲੇ ਹੈ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਉਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟਣ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਘਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂ ਕੁਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਫੀਅਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਲਾਈਕ ਅਮਜਦ ਸਾਕਬ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਮ ਸਲੀਮ ਰਾਂਝਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਅਖੁਵਤ ਦੇ ਲੌਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਘੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਟੂਈ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹ ਆਕਲੈਂਡ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਦਾਰੁਸਲਾਮ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਡੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਔਰ ਪੈਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਬਸਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ वीलॉग जारी रखा या ना रखा आप सच लिखते हैं आपके दिल में पाकिस्तान का दर्द है इसलिए आप ये काम जारी रखें और किसी में नहीं है सिर्फ मेरे च ही है मैं लोहे दा बनिया है जी मर जावांगा तो कौन ने चुकेगा बेड़ा वो तो बात तो चौहान साहब बिल्कुल जारी रखें एक मुसलसल जंग एक कंजरा नाल जिस तरह खान खड़ा है चलो जी ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜਾ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਖੜਾ ਆ ਡੀਅਰ ਸਰ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਅਪ even if the sea of people lies still one drop of truth create ripple ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਪਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ
Keep speaking, your words are not lost. They are waves waiting for their time to rise. And one day they will definitely rise, inshallah. Iftikhar Malik Saab, your spiritual brother. ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਆ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਫੋਨ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀ ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਗੁਜਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਸ਼ਤੌਲੀ ਵੀ ਟੋਕੀਓ ਗਈ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਇਨੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਨਾਨੀ ਗਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਾਮਜ਼ਾਦੀਆਂ ਗਾਂਡੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ नहीं खत्म हो सकती। आपको कितने लोग देखते हैं, क्यों देखते हैं, ज़्यादा क्यों देखते हैं, कम क्यों देखते हैं? आपको इन बातों से बेनियाज हो जाना चाहिए। मैं तो बेनियाज है। आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि आपने नाम नहाद मजहबी लोगों, दूसरे पढ़े लिखों लोगों से हटकर ना सिर्फ अमूर ज़िंदगी बल्कि दीन इस्लाम, कुरान, सुन्नत को समझने की एक नई जुहद मुतारफ़ करवाई है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया तुसी। आपकी तर्ज फ़िक्र की बदौलत बेशुमार लोग रवायती सोच से अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ नहीं कर रहे, कोई 50-100 हो जाएंगे, ज़्यादा लोग नहीं हैं। सोचने का अंदाज बदलना ही तो असल जहाद है। सर जी मैं तो पूरा बुण ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ सोच तब्दील करा। ठीक है जी। जिसके लिए खुदावंद करीम ने अम्बिया अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए। खुदा ना करे अगर कभी बोलने की सलाहियत से महरूम भी हो जाएं, फिर भी कैमरे के सामने बैठ जाना और बस। ओ यार तुसी मैनू वो स्टीफन हॉकिन तो ना बनाओ ना है। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। आप वो करें जो आपके बस में है, बाकी वो जाने और उसका काम। ठीक है पाजी। फिर एक कमेंट, यू सर्व पाकिस्तान सो देयर विल बी ऑलवेज एन इंस्टिंक्ट टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ओके, दैट्स व्हाई यू विल इंस्ट्रक्ट पीपल टू मेक themselves on right path। ओके सर, जिंदा कहंदे हो गुड वेंट प्रोग्राम ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੈ। हक सच की आवाज़ जारी रहनी चाहिए। सुमरा टॉक। मोहम्मद निसार, यू आर वॉइस ऑफ माई हार्ट। भाजी वाह। जावेद फारूक की वेरी गुड एनालिसिस। वो पहला उस्मान हसन दसी यू सर्व फॉर पाकिस्तान। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सर, बस सिर्फ एक वजह से, और वो है मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो सर मोहम्मद उस्मान साहब ये भी करके देख लेने हैं। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਲੌਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਗੈਰ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦਾ ਸਟਾਰਟ, ਦਿਲ ਸੇ ਜੋ ਬਾਤ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਅਸਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। हाँ मगर ताकत परवाज मगर ताकत परवाज मगर रखती है। ठीक है जी। मगर नहीं रहा मैं कन्फ्यूज़ करन डे है यार, इनू मैं कर जाता है। ठीक है जी। अच्छा फिर प्लीज़ जेम्स द प्लीज़ कीप डूइंग अ गुड वर्क। योर वर्क अगेंस्ट मिलिट्री मुल्ला ऑलरेडी बीइंग डिस्कस्ड इन GHQ एंड इन मॉस्क एंड मदरसा। वाजी वाह। GHQ मुनीरा सूरत ते मैनू ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ, ਆਰਾਮਜ਼ਾਦਾ ਲੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਂ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। Sher Khan Sahab, Nazar Sahab, you are the sole warrior of this battle, which is uncovering the most powerful mafia, army and mullah. This unholy alliance must be uncovered, and that alone should be the reason for you to keep continuing your vlogs. Please talk more about the Mosque Darussalam and Dr. Misbah, as your vlogs are now being discussed in this. और डिस्कस की करना, बाइकाट करो यार, दारुसलाम ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਢੂਆ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਨੇ ਡੈਮੇਜਸ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਲ ਦੇ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੈਮੇਜਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੇ ਪਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਡੈਮੇजेस ਕੀ ਕਲੇਮ ਕਰਾਣੇ? ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਢੂਈ ਮਾਰੋ ਟਕਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸਬਾ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਮਰਸਡੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਮੂਡ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਹੋ। Carry on your vlogs for your independent, unbiased views to general public who cares and love you, your contents। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ, ਖੁਦਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਲੇ। फिर जैसे जैसिंदर दिन बेशक अल्लाह पाक जैसे चाहता है हिदायत देता है, ठीक है जी, मैं मान लिया। अच्छा फिर जी साजिदा अजीज़, आप वाहिद इंसान हैं जो अवाम के दिल की आवाज़ हैं। बहन जी बहुत शुक्रिया। दिल दी आवाज़ बस हवा च ही है जी, कम्मा कुम्मा च ते नहीं है। अच्छा फिर हो तो बात तो जी एक मुंडे ने बड़ा अंग्रेज़ी रोमन उर्दू च लिखिया, सर जी आपकी बात सही है कि हम चेंज नहीं हो रहे, मगर आप मेरा यकीन करें कि आपके वीलॉग्स की वजह से बहुत सारे लोग चेंज हो गए हैं। स्पीड स्लो है मगर आई स्वेयर टू अल्लाह चेंज हो गए हैं। मेरी दोस्त पहले कहते थे कि यार सब अपना अपना करो, लेकिन जब से मेरे दोस्त आपके वीलॉग देखते हैं अब बोलते हैं यार अपनी आने वाली जनरेशन की लाइफ के लिए स्टेप उठाओ, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, हक और सच बोलो, जैसे चौहान सर जी जैसा किसी और की परवाह ना करो। सो सर जी आप यकीन करें बहुत पावरफुल है आपके वर्ड्स, ये जो आपके अल्फाज होते हैं ये दिल को लगते हैं, सीधे दिल को लगते हैं। अल्लाह ने जो आपको विजडम एंड ब्रेव दिल दिया है इसकी वजह से आप जैसा कोई नहीं हो सकता है और ना होगा। मैं बता नहीं सकता कि आपकी जगह मेरे दिल में कितनी बड़ी है। बस यही दुआ है कि अल्लाह आपको और मेल एंड हैप्पीनेस दे, दुनिया की हर एक नेमत दे। ऑलवेज लव एंड ऑनर। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत मशकूर है तेरे इस पैगाम ਲਈ। फिर एक सी के सर गुलाम अब्बास सर यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, प्लीज do not stop this activity. What's your opinion about Sufi Barkat Ali near Faisalabad? I like your opinion and way of motivation. All Pakistani are dead as a nation. When generals kill Imran, they will say military did wrong. This is time to start protest every day, even in evening. I know weather is hot, but all nation can protest in evening every day. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਫ਼ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਫੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ ਦੱਸੋ ਕੈਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ opinion ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਬਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਅਹਿਮਦ ਰਫੀਕ, ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਜਰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਲੌਂਡੇ ਲਪਾੜੇ ਫਰਾਡੀਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਤੋਂ ਬਾਅਦ, लेकिन मुबशर बनो, मुबल्लग बनो। वो मुबशर लुकमान नहीं लौड़ा जी आरामज़ादा। फिर जी नज़र साहब आपको काफ़ी सारी वजह बता सकते हैं। एक फ्रांस तो कोई है कि वीलॉग क्यों जारी रखना चाहिए, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह ये है कि आपकी काफ़ी सारी बातें इस्लाम के मतलब मौलवियों के गाले सड़े और खुद सख्ता इस्लाम से बेहतर हैं। जो एक काम मेरी सारी ज़िंदगी इसी बहस में फंसे हुए हैं कि नमाज हाथ बांध के पढ़नी है या खोल के। बिल्कुल मज़हब, फ़िरके, मुनाफ़क़ता, दारुसलाम वहाबीज़म फैला रही है। सऊदी अरब तो अरबां डॉलर मिसबा लैन डी है, हराम जदगियाँ कर रहे हैं। वैसे मैं यकीन करा दसा अगले साल नवंबर तो बाद तो ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਂਸ ਨਾ ਬਜੇ ਬਾਂਸਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
अच्छा, मैं नहीं बोलदी मेरा दुख चीका मारदा है कि मुसादिक है अंदर का दर्द हालात की संगीनी बिगड़ती अवामी ज़िंदगी का एहसास रखने वाले दिखने वाले की सी है आपकी एब्सोल्युटली नोट आप चुप रह नहीं सकते जनाब चलो सर तुसी ठीक कहंदे हो फिर नहीं चुप रहंदे हैं जी अगर तुसी कहंदे हो आप चुप नहीं रह सकते बंदा पीरा हो बस हमारी बदनसीबी के ये कोई नाम मैं नहीं पढ़ सकता बदनसीबी के जिनका लावा बाहर आ रहा है मतलब वो इस मुल्क पाकिस्तान के साथ इतनी ही मुखलिस हैं बस पाकिस्तान रहने के काबिल ही नहीं रहा इससे अच्छा है कि ये मुल्क ही ना रहे थक गए हैं पहले मेरा फादर इंतज़ार करता रहा कि आज नहीं कल पाकिस्तान तरक्की करेगा कुछ भी नहीं हुआ अब सही कहते हैं सुअर हम पर हुकूमत करते रहेंगे और साडा दे नंबर ही टह गया साला हाँ जी अच्छा अगे जी आप वाहिद इंसान हैं जो अवाम के दिल की आवाज़ हैं शुक्रिया जी मे यू लिव लॉन्ग आमीन बेशक अल्लाह पाक जिसे चाहता है हिदायत देता है ओके यू शुड कैरी ऑन फॉर द सेक ऑफ स्पिरिचुअलिज्म ओके आई विल बंदा फिरा हो बस हमारी बदनसीबी ये मैंने पढ़ के आपको सुनाया है अभी फिर वो तो बात तो जी अगे आ जाओ अगे आ जाओ जी अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ करे वेरी वेरी ट्रू ओके ये डॉक्टर जवाद साहब ने कुछ मशवरे दिते सी कि मेरे नाल ये फेवर करो ये मेरा बयान पढ़ के सुनाओ ऑल द मॉस्क इन यूएसए शुड बी बैंड ऑल द मॉस्क ताले ला दियो सील कर दियो इस्लाम बहुत ज़्यादा अमेरिका च फैलेगा ये नफरत इस्लाम के खिलाफ करवा रहे हैं ठीक है जी द डॉक्टर्स स्पेशली आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द मॉस्क बिल्कुल डॉक्टर साहब ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं टैक्स बचा रहे हैं हराम तोबियां कर रहे हैं शुक्र है साडे डॉक्टर नसर शाहिद साहब तो आज़ाद ने इस बीमारी तो अच्छा फिर उन्होंने कहा कि ओनली वीज़ा बी ग्रांटेड टू मैनुअल लेबरर्स नो PhDs नो मास्टर्स नो डॉक्टर्स फर्स्ट क्लास मेरे दिल दी आवाज़ अमरीका कोई ज़रूरत नहीं कि वो PhD मास्टर डॉक्टरां दे वीज़े इत्थे दिंदा फिरे ट्रंप वैसे ही बंद कर रहा है रिसर्च डॉक्टर साहब जींदे रहो बहुत अच्छा कमेंट है फिर एक होर उन्हां दा सी प्लीज डंप ऑल द स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्पिटल्स ऑफ पाकिस्तान इन द अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन एंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको और डॉक्टर साहब गल्फ ऑफ मैक्सिको और गल्फ ऑफ अमरीका बन गया तो लेकिन ये करा देंगे डंप ये सारे चौथ साडा बस चलिया कोई रिपब्लिकन चलो जरा आए लेट है सेनेटर ते बन जाना सी न्यू जर्सी तो हाँ जी अच्छा फिर जी नजर साहब प्लीज कंटिन्यू वीलॉग योर एनालिसिस ऑन न्यूज़ आर यूनिक ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢੋਈ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਣ ਲਈ ਵੀਲੌਗ ਕਰੋ तारक मेहमूद चलो जी ढोई मैं ही सेकंड ते रह गया और तो कोई नहीं रह गया जो बात आप कहते हैं वो कोई और न कहता है न कह सकता है जी ना नॉलेज है ना ईमानदारी है ना साबित कदमी है ठीक है जी लौड़ा कहना उन्होंने और मेरे जैसों की फ्रस्ट्रेशन भी आपका वीलॉग सुनकर कम होगी ठीक है जी आपको ज़रूर वीलॉग करना चाहिए इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है शुक्रिया जी कोई फ्रिया भट्टी हैं भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया Canadian Grizzly Chauhan Saab, you are valuable asset for the international Pakistani community. Thank you very much. Yes, community, overseas community really love me. I believe everyone living abroad loves to watch your vlogs, which are always based on truth and well-researched analysis. And based on true information, stay blessed and happy. चलो जी जिस तरह तुसी फरमांदे फिर नज़र साहब तुसी अपना काम जारी रखो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सुन के रूहानियत महसूस होती है अहमद लाहौरी वेरी गुड जी यस सर प्लीज़ कंटिन्यू योर वीलॉग इरफान मीर मैं नहीं बोलती मेरा दुख चीका मारदा है अली अहमद साहब का दूसरी बारी फिर आया हुआ कमेंट सर जी आपकी आवाज़ जुल्म के ख़िलाफ़ है इसको बंद मत करें होने दें वीलॉग जारी रखें काशिफ इकबाल साहब ठीक है जी फिर वो तो बात तो जनाब साहब एक और कमेंट है
अस्सलाम वालेकुम मुर्शद, आपको सलामत रखे, आमीन। गुजारिश थी आप वीलॉग किया करें, आप ही से रूहानियत की बात सुनकर उस रोशनी तक रसाई की कोशिश में लगा हुआ हूँ। ऐसे और भी होंगे जो इस रोशनी को पहचानने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। आप एक फसल तैयार कर रहे हैं अकेले, और फसल के लिए रकबा ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा लग रही है। एक मसाल देता हूँ आपको, आप कैसे अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मुझसे इंसानियत की खिदमत की मदद करवा। जब से ये बात आपसे सुनी तो सोचा मैं तो ज़िंदगी के 30 साल ज़ाया कर दिए, अब मैं भी यही दुआ करता हूँ। बहुत अच्छा जी, ये थे मैं तो अच्छा चीज़ सिखाती। कोशिश रहती है कि लोगों को मेरी वजह से फ़ायदा मिले, और अगर आप वीलॉग बंद कर दिए तो मकरू जरलन जरलन फ़ौज का चेहरा बेनकाब होना भी बंद हो जाएगा। आप ही मर्द वाहिद है जो बेलौस होकर इस यकिस्तान का एक नुक्ता वापस लाने की कोशिश में है। चलो जी, कोशिश कर दें, ਅਸੀਂ सारे मिल के लगे हुए हैं भाई जी। हम खुश तो होएगा हैं जी। चौहान साहब वीलॉग ज़रूर करें, शबीर बुखारी। इससे एक तो आपकी अपनी भी भड़ास निकाल कर थोड़े रिलैक्स हो जाते होंगे यकीनन, और आपके वीलॉग से हमें भी ना सिर्फ एनर्जी मिलती है बल्कि आपकी ज़िंदगी के तजुर्बात और हालात हाजरा पर बेलाग तबसरे से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। इस करप्ट माफिया और करप्ट जर्नैलों को जिस तरह आप नंगा करते हैं, किसी में जुर्रत नहीं, सलामत रहे। किसी में ना जुर्रत है और ना हिम्मत है। लो जी, ये तो वैसे फैक्ट है, ना ही किसी जुर्रत है ते ना ही हिम्मत है। आप बिल्कुल सही कहते हैं, जब हालात इतने मशहूस कुन हो जाएं तो अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, मगर आप अपना वीलॉग जारी रखें। कहीं ना कहीं से इन सूरों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती रहनी चाहिए। ये जहाद है, और यही जहाद है जिसे हमेशा जारी रहना चाहिए। रिज़ल्ट कुछ भी हो, मगर आप अपना काम जारी रखें। माली दा काम में पानी देना। बस। अच्छा, फिर सर हजरत नूह ने 900 साल लोगों को दावत दी, मगर चंद लोगों के सिवा किसी ने उनकी बात ना मानी। हक बात को पूरी ताकत के साथ आगे पहुंचाना ही आपका काम है। हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है, सो डोंट गिव अप। आमिर सिद्दीकी, वेरी नाइस। नजर जी, सैयद माजिद, आई सी इंटेलिजेंट डीप थिंकिंग इन योर व्लॉग्स, रीजन यू शुड कंटिन्यू। Muhammad Farooq, yes, please continue vlogs. Your vlogs are very informative and realistic. Naeem, because you are the voice of downtrodden people of Pakistan, most of the media has been bought by the government. The ones who are not compromised have not courage to speak up like you. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ अच्छा, कंटिन्यू वेरी यस प्लीज, बिकॉज यू आर द वॉइस ऑफ डाउन ट्रोडन पीपल मोस्ट। अच्छा, ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ के सुनाता, फिर मैं वो भी सुनाता। अच्छा, अगे जी। नज़र साहब, वीलॉग को जारी रखें, इससे आपके दिल गुबार निकल जाता है। पाकिस्तान की सरजमीन को राहत मिलती है। इस सरजमीन में रहने वाले लोगों को सुकून मिलता है। पता चलता है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। गंदे सिस्टम के ख़िलाफ़ जंग जारी रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया जी। सैयद माजिद अली लिखते हैं, आई सी द इंटेलिजेंट डीप थिंकिंग इन योर वीलॉग्स, सो कंटिन्यू। ये मैं अगे तुहानू दस्सिया है। अच्छा जी, फिर वो तो बात तो जनाब वीलॉग जारी रखो, तुन के रखो करप्ट जर्नल्स ते उन्हां दे टाउट्स ਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੇ ਚੱਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਨਜ਼ਰ ਜੀ। ਆमिर ਸਦੀਕੀ, ਆਰਿਫ ਜਾਵੇਦ, ਦੁਰੁਸਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ। ਬੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਸੱਚੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। फिर एक कमेंट है, मस्जिद कुफर के ठिकाने बन चुके हैं। जियो ढोला टीवी, बॉटम लाइन 100% मुत्तफिक, हक बात करते रहें। रिजल्ट्स आपके ज़िम्मेदारी है ही नहीं, वो अल्लाह का काम है। जिसको बेहतर करना होगा, जिसको आपके ज़रिए हिदायत देनी होगी, वो अल्लाह ही देगा, आप नहीं। लेकिन हक बात करना आपका हक भी है और फ़र्ज़ भी। वो आप जारी रखें, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुमकिन हो। आपके लिए सलामत रखे, आमीन।
चलो जी, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह जारी रखांगे। फिर चाचा तेरे जे बंदियां दी बड़ी लोड़ ਏ, ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਅਮਜਦ ਮਲਿਕ। Mohammad Farooq, just please continue. Vlogs, your vlogs are very informative and realistic. फिर मोमी खान बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह, सलामत रखे। वीलॉग से एनर्जी जनरेट होती है और वो एक जगह जमा होकर असरअंदाज होती। पत्थर के ऊपर पानी कतरा कतरा गिर के इसमें गड़ा डाल देता है। लिहाजा आपके वीलॉग की अहमियत अपनी जगह आप ज़रूर जारी रखें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले इरशादात फरमाए थे, मगर उनकी एनर्जी की ताकत आज भी चल रही है। इसी तरह आपके वीलॉग किनेटिक एनर्जी ज़मानों तक चलेगी। शुक्रिया जी, बड़ा अच्छा लॉजिक देता है। बिकॉज यू आर द ओ, मैं आगे पढ़िया, ठीक है जी। अच्छा, फिर अगे चलिए। अच्छा जी, चलो थोड़ा जहा हिल जाता ना सिस्टम विचों। अच्छा जी, because you speak the truth and represent me along with history facts, keep it up, may almighty bless you health and more eloquence। वेरी गुड जी, चलो जी जारी रखांगे। मेन रीज़न क्यों जारी रखो, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड लाइट। यू हैव गॉट ऑल थ्री। जहाँ सब रहा अंधे रहते हों वहाँ पर लाठी का होना ज़रूरी है। चलो जी, ये हेडिंग ला दे, जहाँ सब अंधे रहते हैं वहाँ पर लाठी का होना ज़रूरी है। वो लाठी फाड़ के मैं भी वैसे अन्या जी खाना राजा है, सारे लौड़े जे बहन चो दले इकट्ठे हुए। अच्छा जी है। अच्छा, फिर वो तो बात तो जी, आइए अगे। सर माशाल्लाह सर, यू बोथ गाइस आर लुकिंग ग्रेट सर, एज ऑलवेज। अल्लाह सुब्हान अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को सेहत और खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। नो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स प्लीज़, यू आर राइट, नॉट वर्थ इट, ओनली स्पिरिचुअलिटी and talk on Mada Prasti. Yesterday, I was kicked out from one family dinner because I was talking against mosques and telling them our religion is humanity first, not being Muslim first, and enjoyed the consequences. Love you, sir। वाह जी वाह, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਕ ਆਊਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। मौलवी और मिलिट्री इन्होंने तबाह कर दिया। ठीक है जी। क्योंकि जनाब आप विसल ब्लोअर हैं जनाब, नास जाओगे तो फिर बाकी कंजर ही बचनगे जनाब। बस नाम रहेगा अल्लाह का। बिल्कुल जी, नाम रहेगा अल्लाह का। बजाय अपनी बारी का इंतज़ार करते और चाहे वह तुम अपनी जाए, ये कहानी बाज बगैरत कौम सिर्फ तेरी जवां मर्दी और जेल काटने के किस्से और गीत सुनाएगी। इमरान खान के बारे च उन्होंने किया। तेरे जनाजे के साइज पर फख्र करेगी, मगर पहले की तरह बेगैरत रहेगी। फौज ने अरबों लगाकर ये 25 करोड़ बुत तैयार किए हैं, इन्हें ब्रेन वॉश किया है। अपनी जान बचा लो, भूल जाओ इस गुलाम कौम को। जान बचा लो, कुछ भी नहीं कर सकते। सर जी, ये तो इमरान खान मैं बड़ा किया सी, नहीं मनिया, उनकी बंदा उत्थे करे। आसिम मनीर कहता है मुझे फील्ड मार्शल खुदा ने बनाया, वो मेरी ख्वाहिश है मुझे शहादत मिले। ओए बेगैरत, जितनी तेरी सिक्योरिटी है तुझे शहादत कहाँ से मिलेगी? तुम कुत्ते की मौत मरोगे ज़ियाउल हक की तरह, जैसे तुमने तरक्की ली है। तुम्हारी आईनी सज़ा फांसी है। इंशाल्लाह हम तुम्हें फांसी पर लटकाएंगे। इंशाल्लाह मनीर मिस्त्री सूअर, टट्टियां तो लमकावांगे तेनों, ठीक है ना? वो पाट जाने हैं टट्टे वैसे जो लमकावांगे। अच्छा, और दूसरे आइन के कातिल फौजियों को कब्रों से निकाल कर घसीटेंगे। इनकी लाशों को दरख्तों और चौराहों पर लटकाएंगे। 1000 साल तक कोई फौजी पाकिस्तानी सियासत में मदाखलत ना कर सके। वाह जी वाह, क्या गल की थी सर जी। ये तो बड़े कोई चार्ज है भाई जी ने, ना नू ये अपना नहीं दसते, बस एवं ठोक देंगे हैं मैसेज जिया। आज के दिन ज़ियाउल हक की मौत, ज़ियाउल हक कुत्ते की मौत मरा था। कुत्ते के दांत मिले थे जिन्हें फैसल मस्जिद के पास दफनाया गया। कमाल है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की नकली रिपोर्ट बनाने के लिए भी कुत्ते का खून लिया गया। चलें छोड़ें, मेरा सवाल ये है कि आज ज़िया की बरसी थी, तो क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आर्मी चीफ
क्या कोई पहुंचा उसकी कब्र पर? पाकिस्तान का मजबूत तरीन लानती वो था। लाखों पठान उसकी वजह से कत्ल हुए। मनशियात और क्लशनकोव कल्चर से उस खंजीर ने खरबों का नुकसान किया पाकिस्तान का। अभी भी वक्त है इस मनहूस का जबड़ा निकाल कर कचरे में फेंके और ट्रैक्टर से हल चलाएं इसकी कब्र पर, पाक करके दरख्त लगाएं। सोहेल वडैच के कॉलम का दूसरा मतलब मकसद पैगाम ये है कि फौज इतनी दौलतमंद, इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर, इतनी बड़ी फिरौन है कि चाहे इमरान खान दुरुस्त भी है, चाहे उसके साथ अवाम भी है और फौज गल्ब भी है, मगर तब भी इमरान खान को हार मान कर साइड पर लगना होगा। भारी वाह सर जी, बड़ियां डूंगियां जी गल्लां कर गए हैं। चौधरी नज़र मोहम्मद चौहान गुजर जिंदाबाद। सर भुंडा दे छत्ते विच हथ पा लिया जे, मौलवी ते फौजी दोनों बहुत खतरनाक। ओ नहीं नहीं, डरदा ते मैं होना तो नहीं, मज़ा नहीं आ रहा सी भाई जी, डरदा नहीं होना तो टूआ मारांगा आखिरी दम तक इन्हां दा ते टूआ मारदा रहा। अच्छा जी, नजीब नियाजी सर, ये मुमकिन है ना था कि मौलवी हकीकी मानों में दीनदार होते और सिस्टम उन्हें गिरावट तक, सिस्टम इतनी गिरावट तक पहुंचता? वैसे की गल ए मैं कहंदा था, अगर मौलवी वाकई दीनदार होंदे ते उन्हें क्या ये मुमकिन ही नहीं सी कि ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ सिस्टम है वो इन्नी गिरावट तक पहुंचता। मौजूदा बदबूदार सिस्टम की इस दर्जा गिरावट में पहला नंबर मौलवियों का है। इमाम मस्जिद टूआ मारो पहली फुर्सत। बाजी बबली का बतौर वजीर आला PIA के बड़े इफ्तार खटक साहब ने बड़े जहाज़ में जापान का दौरा हम समझ नहीं सके, लेकिन हमें एक बात मालूम है कि बाजी बबली नवाज जहां रहेगी जापान टोक्यो के उसी होटल में मोदी भी क़याम करेगा। ऐसा लगता है कि बाजी बबली कंधे पर FM मोदी से दरख्वास्त कर रहा है। सर जी मच वेरी थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, स्टे ब्लेस। सच बोलना जिम्मेदारी है। यस यस इट इज़ जिम्मेदारी, ठीक है जी, लेकिन कोई इन्हों जिम्मेदारी समझे तो सही। अच्छा जी, सुहेल बलोच साहब, चौहान साहब, फ़िरके वाले मस्जिदों में कदम रखने से भी मना किया गया है। कुरान गवाह है, जो अल्लाह की मस्जिदें बनाते हैं बड़े शानदार लोग हैं। वह मस्जिद कौन सी है कुरान बता रहा है। अपने दिलों को मर्द मुर्ता होने दो, उन्हें ज़िंदा रखो अल्लाह के ज़िक्र से। बेशक अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। वह मस्जिद उसके अंदर है। ए तन हुजरा सच्चे रब दा, ए तन हुजरा सच्चे रब दा, हको सच के लिए रिज़्क़ हलाल शर्त अवलीन है। मुसलमानों ने रिज़्क़ हलाल तरक कर दिया और ज़िल्लत उन पर मुसल्लत हो गई। ठीक है जी। अच्छा, फिर वो तो बात तो इस सारी कहानी से कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन असल मसला ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त के लिए तैयार ही नहीं किया गया है। इस कौम को पहले दिन से ट्रक की बत्ती के पीछे भागने की तरबियत दी गई है। ये अव्वल तो कौम है ही नहीं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि है तो हकीकत में ये एक मुशरिक कौम है। कौन सी आदत इस कौम में नहीं जो तारीख़ में मकसूब, जिन पर अल्लाह का अज़ाया कौमों में पाई जाती थी। ये कौम एक्सेप्शनलिज्म का शिकार है, बावजूद इसके हर तरफ से उसकी ऐन गैन शीन हो रही है। इस सियासत से कता नज़र एनर्जी के मुतबादिल ज़राए पर किसी लीडर ने कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं की, जिसकी वजह से इस अवाम को ज़िल्लत व मस्कनत का सामना है। और सरमायादार रीत की इस दुनिया में एक अच्छा और कामयाब बिजनेसमैन ऐसे मौके नहीं जाने देता। अपने माशरे पर यही असूल अप्लाई कर दें तो मज़ीद समझ के लिए सिर्फ बातनी बसीरत दरकार होगी। पाकिस्तान हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय करियर ओरिएंटेड पीपल। वाह जी वाह, बहुत ज़बरदस्त तुसी फरमाया। जस्ट टर्न द मेडिकल। अच्छा जी, फिर वो तो बात तो असद उमर के भाई ज़ुबैर उमर की एक तवील सियासी छलांग आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान पुल बनने का इशारा दे रही है, ताकि इमरान खान को एक ख़ास बात पर, चलो जी ये उन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, ये सियासी भी कमेंट है, ये कल करांगे कि की ये ते हो रहा। तुसी अपना जनाब साहब बहुत ख्याल रखो, ठीक है जी। ए नंबर मेरा नोट कर लो। अगर मेरा किसी वक्त भी जनाब साहब ये बंद हो जाता ना मेरा यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप ते रहो,
ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ WhatsApp ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਆ ਔਰ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ